Bhargav, can you hear me? Yes, ma'am. Hello, Bhargav, can you hear me? Yes, ma'am. Can you hear me? All right. You people haven't received that, no? No, I can't hear you. Can you speak again? Can you hear me though? Hello, can you hear me, ma'am? Yeah, now I can clearly hear you. Oh, okay, ma'am. I'll be sharing the PDF with you. Yes, ma'am. Check if you've received or not. I've received it, ma'am. Okay. Okay, we are going to wait for just 2 more minutes. We'll see if another person joins online or not, and then we'll start. Yes, ma'am. Meanwhile, if you want, you can go through the PDF. We are going to start the another part of speech. One was narrative that we did in the previous class, and today we are going to do voice, active passive voice. Okay, ma'am. Vishwa, दिया तुमको मैंने? Yes. Let me check. I had it's auto connect only. I had added it long ago. I think it's इसमें तो दिखा नहीं रहा है, but it is I think reflex 1 2 3 ऐसा कुछ है. So do you know the password?
Reflex 1, 2, 3, no? सब small. Reflex. REFLEX 1, 2, 3. Okay, let's start. Okay, before me explaining what voice is, I would like the responses from you people. What according to you, what is voice? School में at some point सिखाया ही होगा active passive voice, but what according to you is the actual meaning of voice in grammatical sense, in language or conversation? What do you understand by this word? The manner in which the sentence is being said. Okay. So what you said is very vague. The manner in which a sentence is being said. उसमें तो narration भी आ जाएगा, direct indirect speech. How does voice differ from other mannerisms of conversing? And something subject and verb का question. हाँ वो उसके rules में आता है subject and verb. But voice होता क्या है? How is it different from narration? Voice is basically how you voice yourself. Narration में there was a third person. ठीक है? Indirect speech में what do you do? It's like the concept is very similar to gossiping. When two people are talking about the third person, either in their own language, tweak करके, या फिर जो third person ने बोला है उसी को exact words में quote करके, which is called direct speech. Unlike to that, voice is तुम अपनी ही बात किस वे में रख रहे हो. How are you presenting your thoughts? How are you voicing yourself? उसके अलग अलग पर्पसेस हो सकते हैं. वन पर्पस इज द सेटिंग यू आर एट, जिस जगह पे हो, जिस टाइम पे हो. सेटिंग मतलब इज इट अ फॉर्मल सेटिंग, या फिर उसका पर्पस क्या है. तुम किसी क्लासरूम में एक पीपीटी प्रेजेंट कर रहे हो, उसका लैंग्वेज कैसा होना चाहिए, या फिर अपने बॉस को रिपोर्ट कर रहे हो, या फिर एक न्यूज रिपोर्ट है, उसको किस तरह प्रेजेंट करना है. तो फॉर्मल सेटिंग में जो लैंग्वेज यूज होता है वहां पे हम पैसिव वॉइस यूज करते हैं, विच इज ऑल्सो कॉल्ड रिपोर्टेड. रिपोर्टेड स्पीच तो वो उसमें आ जाता है इनडायरेक्ट स्पीच में, बट पैसिव वॉइस इज यूजुअली यूज्ड इन फॉर्मल सेटिंग्स. And the other purpose of passive voice is to show your importance where you have not done the work. मतलब active voice is about the doer, passive voice is जिसके साथ हो रहा है, it is about the receiver of the action. Okay? और passive voice में हमेशा जरूरी नहीं है कि there has to be a subject. It focuses more on the object. For example, अगर मेरे साथ कुछ हुआ तो focus will be on me and the action. मेरे साथ किसने किया उस पे फोकस नहीं जाएगा. मेरे साथ क्या हुआ और किसके साथ हुआ, मेरे साथ हुआ. फोकस विल बी ऑन दैट. ऑन द कॉन्ट्ररी, एक्टिव वॉइस इज मोर ऑन द डूअर. उसने क्या किया विल बी अ लेटर पार्ट ऑफ इट. ओके. बहुत सारी न्यूज रिपोर्टिंग्स में भी हम देखते हैं, न्यूज हेडलाइंस में देखते हैं, even on news channels and on newspaper headlines कि so and so person was killed by, वो हम sometimes it is understood, that is why mention नहीं करते, या फिर अगर mention करते भी हैं तो वो चीज कहीं ना कहीं sideline हो जाती है. For example, इसी same sentence को if we converted into active voice, so and so person killed this person, तो this person पे focus हट जाएगा because that's the object.
जिसने किया उस पे फोकस जाएगा. एंड दिस हैज बीन दिस हैज बीन हैपनिंग सिंस अ लॉट ऑफ सिंस एजेस वी कैन से. ठीक है. तो पैसिव वॉइस में डूअर से ध्यान हटके कहाँ हो जाता है, रिसीवर पे. एंड दैट इज व्हाई पैसिव वॉइस में क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है दैट बिकम्स द सब्जेक्ट. ओके. Okay, we'll start with the rules now. Just like in narration, just like in speech, voice में भी हर tense से according there are going to be conversion rules. कि अगर present tense में active voice है तो उसको passive voice में convert करने के लिए we'll have to make some changes. Verb में change आएगा, कि pronoun में change आएगा, कि sentence के और parts में change आएगा. We'll see to that. Okay. So tense wise we are going to start. पहला रूल तो ये समझ लो कि अगर सेंटेंस में कोई नाम नहीं दिया है, ओनली प्रोनाउंस आर यूज्ड, तो सब्जेक्ट प्रोनाउन विल बी चेंज टू ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. पहला जो एग्जांपल दिया है, शी सिंग्स अ सॉन्ग, तो उसमें शी का हर हो जाएगा. प्रोनाउन नाउन प्रोनाउन चैप्टर में हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट प्रोनाउन सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होते हैं. तो सब्जेक्ट वाला ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, शी का हर हो जाएगा, ही का हिम हो जाएगा. ठीक है. सेकेंड रूल इज दोनों की पोजीशन भी चेंज हो जाएगी. ठीक है. मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो ऑब्जेक्ट वाली जगह पे यूज हुआ है वो सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा. दैट मीन्स यूजुअली डूअर पहले आता है, पर पैसिव वॉइस में डूअर लास्ट में चला जाएगा. बाय डूअर का नाम कन्वर्टेड इनटू ऑब्जेक्ट फॉर्म, और वो ऑब्जेक्ट जो ओरिजिनली था वो सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा इन द इनिशियल पार्ट ऑफ द सेंटेंस. ठीक है. Okay, we are going to start with the rules now, starting from the first tense, present tense. Simple present tense का जो active voice होता है, normal first form of verb use होती है और कुछ नहीं होता. Passive voice में object पहले आ जाएगा और subject last में आ जाएगा, और बीच में जो change आएगा वो क्या आएगा, present के ही helping verbs use होंगे, is am are plus V3. एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना कि वट एवर द टेंसेज, रिगार्डलेस ऑफ द टाइप ऑफ टेंस, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, उसके अंदर के भी जितने सिंपल कंटिन्यूअस परफेक्ट जितने भी टेंसेस हैं, पैसिव वॉइस में हर टेंस के वर्ब फॉर्म विल बी थर्ड. इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इन ऑल द पैसिव वॉइस सेंटेंसेस. ओके, ये ट्रिक याद रख सकते हो, कहीं पे साइड पे यू कैन नोट इट डाउन ऑल्सो. So simple present tense, active voice V1, passive voice is MR V3. Okay. Present continuous is MR V1 ing. Passive voice is MR being V3. V3 is going to be constant in passive voice. ठीक है. Present perfect, subject has a V3. पैसिव में परफेक्ट में क्या होगा, हैज हैव बीन V3. जो मैंने टेबल दिया है मैं वहीं से रीड कर रही हूँ, उसमें जो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब फॉर्म है उसको अंडरलाइन कर दो, सो दैट इट्स इजियर फॉर यू टू रिमेम्बर. ओके. और नीचे जो एग्जांपल दिया है उसमें भी यू कैन अंडरलाइन द वर्ब फॉर्म. फॉर एग्जांपल, नितेश हैज चैलेंज्ड हर. हैज चैलेंज्ड चेंज हुआ हैज बीन चैलेंज्ड, तो उसको अंडरलाइन कर दो. अगेन दूसरा रूल जो मैंने बोला था, प्लेसमेंट ऑफ द सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट. नितेश लास्ट में आया, बाय नितेश. हर को हमने, वो ऑब्जेक्ट था, हमने उसे सब्जेक्ट में चेंज कर दिया, विच इज हर का शी. ओके. पास्ट टेंस, भार्गव समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट, नॉर्मल V2 सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होता है. पैसिव में was were V3. फॉर्मेट सेम है, प्रेजेंट में is am are V3 था, सिंपल पास्ट में was were V3. नेक्स्ट, पास्ट कंटिन्यूअस was were ing, पैसिव में होगा was were being ing. प्रेजेंट कंटिन्यूअस के पैसिव में क्या था,
is am are being V3 और past में was were being V3. Once you understand the pattern, तो helping verb अगर पता है कौन से tense में क्या use होता है तो automatically you can change it. Past perfect had V3 will be changed to had been V3. Okay. अच्छा, इसमें जो टेंसेस नहीं मैंने मेंशन किए, फॉर एग्जांपल प्रेजेंट में कौन सा नहीं मेंशन किया? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि उसका पैसिव वॉइस नहीं होता, वी कैन नॉट कन्वर्ट दैट. सेम वे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी चेंज नहीं होता, इट रिमेन्स एज इट इज. रिमेन्स एज इट इज का ये मतलब है कि गलती से अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आ भी जाता है, पहली बात तो उसमें टाइम ड्यूरेशन की वजह से कन्वर्जन नहीं होता. दूसरा, फॉर एनी सर्कमस्टेंस, अंडर एनी सर्कमस्टेंस, अगर इस तरह का क्वेश्चन आ गया बाय मिस्टेक या फिर तुम्हारा लैंग्वेज स्किल्स टेस्ट करने के लिए आ गया, तो उसमें जो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट का कन्वर्जन है, यू कैन जस्ट डू दैट मच, और उसका टेंस वाला पार्ट है जो वर्ब कन्वर्जन वाला पार्ट है, दैट विल बी रिमेन एज इट इज. ओके. फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर, इसमें दो टेंस में ही कन्वर्जन होते हैं, सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर परफेक्ट. फ्यूचर कंटिन्यूअस में चेंज नहीं होता, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी चेंज नहीं होता. सिंपल फ्यूचर में क्या होता है? V1 will V1, पैसिव में will be V3. फ्यूचर परफेक्ट में will have V3, फ्यूचर परफेक्ट के पैसिव में will have been V3. ठीक है. फ्यूचर का एक बार सेंटेंस देख लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट का. विजय will have washed the shirt by the time I reach home. तो यहाँ पे by the time I reach home